हेलो एवरीवन, आई एम रहीम और आप देख रहे हैं बहता पानी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हमारे साथ हैं दानिश इम्तियाज गंगानी। ये आईबीए से एसोसिएटेड है। आईबीए एक टॉप स्कूल है पाकिस्तान का। ही इज़ अ मैनेजर एट कैरियर डेवलपमेंट सेंटर एट आईबीए और ये फ्रीलांस ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसी भी करते हैं। मैं आज इनसे पूछूंगा कि कैरियर डेवलपमेंट में हमारी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए और हम टॉप 3 क्या मिस्टेक्स करते हैं इन जनरल इन कैरियर डेवलपमेंट। तो लेट्स टॉक टू हिम। थैंक यू दानिश, आपका आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। हम आपको वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे बहता पानी पे। Thank you so much, Rahim, for inviting me to your show. And I think this in this COVID, जो best part हुआ है वो यही हुआ है कि we all are going digital, and we are trying to showcase all our work, all our information and knowledge that we have gained through this platform. So thank you so much for inviting me. नो प्रॉब्लम। तो पहले आप अपने बारे में बताएं कि आजकल क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। Right. So currently, I'm leading the IBA's यानी Institute of Business Administration Karachi में हमारे यहाँ पे career development center है. I'm leading that, and there we have a lot of programs going on. काफी हम skills development पे काम कर रहे हैं students की और हमारे graduates की. Apart from that, I'm also involved with our Center for Executive Education as a life skills trainer and skills trainer. And I'm also an NLP practitioner as well. So this is all about me for now. Although मेरी profile काफी enrich है, but the thing is that due to lack of time we have, so I think this is enough. परफेक्ट परफेक्ट। So let me start with that, दानिश के ऐसी क्या टॉप 3 रूल्स हैं या डूज हैं जो कि पाकिस्तानी यूथ को फॉलो करना चाहिए फॉर द कैरियर डेवलपमेंट। Right, a very good question and a very very important question in this time जहाँ पे हम जो है वो काफ़ी टाइम हमारे पास मौजूद है to self reflect. So I think the first thing that every youth should do at this point in time is to self reflect. And when I say self reflect is that means कि वो अपने जो है वो strengths areas को identify करे, उनके weaknesses क्या हैं उसको identify करे, उनका पैशन किस तरफ है। पैशन जरूरी नहीं है कि आपके जो है वो एस में ही लाई करता हो। देयर शुड बी योर समथिंग दैट यू रियली एंजॉय डूइंग regardless कि आपको उसमें अभी so identify yourself. It's really important to understand yourself at this point in time. So पहली चीज जो यूथ में आजकल मैं देखता हूँ कि जो शायद थोड़ी कम हो गई है वो ये है कि they do not pause and reflect. So it's really important for you to do self-reflection. That's important. Secondly, after doing self-analysis, it's important to understand what's going on in the market. So market knowledge जो है वो बड़ी important है, and वो जब आएगी जब आप लोगों से interact करेंगे. Okay. So the second point that youth needs to consider is to have a wide range of network. And I'm a firm believer of the fact that your network in this time, I mean in this era, is your net worth. So if you go and meet people, because ये अब हुआ ये है कि definitely this is physical distancing that we are currently observing, but this does not mean that we are socially away from each other. We can interact like we are doing right now. So social interaction खत्म नहीं हुई है. So it's important to understand for the youth to know the importance of interacting with the right people and to increase their network. So meeting the right people, talking to them about their themselves, about their interest, about the industry, about the market is really important. They can't sit on their मैं आपकी बात मुझे एक और सवाल करना है इसमें से। हाउ वुड यू डिफाइन राइट पीपल? जब आप कह रहे हैं कि राइट पीपल से इंटरेक्शन होना चाहिए, yeah डिफाइन राइट पीपल? So as I said, once you self analyze yourself, you will be able to understand कि आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है, आप किन एरियाज में अपने आप को ग्रूम होता हुआ देखते हैं, कहाँ आप अपने आप को जो है वो काम करता हुआ देखते हैं.
राइट. सो उन एरियाज में जो सक्सेसफुल लोग हैं या जो वो लोग हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री में उन एरियाज में काम कर रहे हैं, you need to get in touch with them, you need to get along with them, right? And these are the right people for you, right? So my list of right people might be different from Rahim's list, right? Makes Because sense, आपका area of interest, आपके area of work different है, and my area of work is different. So I should know my area of interest list कि वो कहाँ है, वो कौन से लोग हैं जिनसे मुझे मिला. अच्छा, it doesn't mean that you have to just interact with the people which are in your surroundings. ठीक है. Okay. In this era, we are connected digitally. So even if you know someone or if you come across a name which is doing a fantastic job in your own field of interest, you can connect them digitally as well. Connect with them digitally as well and get to know more about the field itself. इस वक्त market क्या मांग रही है, इस वक्त जो area में आप काम करना चाह रहे हैं, वो basically क्या demand कर रही है. So this is really important. The second thing is networking. Networking. And third is, of course, focusing on your skills development. Because हमारे पास academia, there is a huge gap between academia and industry. Because we feel, being an educationist, I also observe कि every now and then employers हमसे request करते हैं on certain set of skills which are not actually being taught in university or in classrooms. And that is because the academia is not directly linked with the industry. क्योंकि देखिए आपके जितने curriculum develop हो रहे हैं वो ये देख के नहीं हो रहे कि industry को क्या need है. क्या चाहिए, सही बात है. They are all developed with the fact कि you have an academic strength available, आपके पास अच्छी faculty available है, तो आपने कोई course offer कर दिया या कोई degree program start कर दिया. जबकि इंडस्ट्री को उसकी नीड ही नहीं है, या नीड है तो इसकी अब नीड उतनी नहीं रही जितनी कि पहले थी. सो इट्स द केस. सो दैट्स व्हाई जो गैप है वो स्किल्स डेवलपमेंट का जो आप कहते हैं कि जो पोर्टफोलियो है या स्किल्स डेवलपमेंट का जो काम है वो इसीलिए ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द मार्केट एंड द एकेडमिक. सो स्किल्स आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंडस्ट्री को नीड है, जो एकेडमिया में अवेलेबल नहीं है या है तो टू दैट एक्सटेंट नहीं है जो कि इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, और उनको सीखना है. और उनको सीखने के लिए अगेन आई वुड से डोंट रिलाई ऑन एनी क्लासरूम ट्रेनिंग, डोंट रिलाई कि कोई जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफर करेगा तो मैं कर सकता हूँ. ऑनलाइन टूल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल थ्रू व्हिच यू कैन take those courses. Nice. मैं ये बताता चलूँ अपने व्यूअर्स को कि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई, इसमें मैंने 5 कोर्स रिकमेंड किए हैं ऑनलाइन जो आप ले सकते हैं डिफरेंट सेट ऑफ स्किल सेट्स के लिए. उसमें लीडरशिप है, टीम वर्क, कोलैबोरेशन है और लाइक रोबोटिक्स है, तो फील फ्री एंड चेक देम आउट. सो दानिश, कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या 3 मिस्टेक्स होंगी, टॉप 3 मिस्टेक्स जो हम अगर करें तो हमारे डिजास्टर्स साबित हो सकती हैं इन कैरियर डेवलपमेंट, तो क्या 3 टॉप मिस्टेक्स होंगी? That's again a very very critical question, और especially आज के इस challenging time में जहाँ competition काफी stiff है. So सबसे पहली mistake जो हम कह सकते हैं कि youth करते भी हैं एंड जो है वो unintentionally भी कर जाते हैं, is that कि they feel that if they are from good universities or good academic institutions, they will be they are employable. ठीक है जी. आज के challenging time में it's not just about the university that you belong to, but it's also important that how professionally and personally you are groomed. So whether it be your communication skills, whether it be your technical skills, सही है जी, और overall आपका persona क्या है, ठीक है जी. So that's really important. So first mistake, do not just rely on your institution, or do not just rely on the universities that you belong to कि वो आपको किसी जगह employable बना सकती है. All are making efforts, but ultimately it's upon you how you prepare yourself for the industry. Second mistake जो है, it's again जो कि आपके लिए disastrous हो सकती है, वो ये है कि too much focus on monetary benefits.
I've seen a lot of people, I've seen a lot of youngsters जो आते हैं सर, कहते हैं सर किस एरिया में स्कोप है, एंड whenever I say अच्छा स्कोप काफी चीजों का है, मैं इसको जब 3-4 फील्ड्स बताने लगता हूँ तो कहते हैं सर ये नहीं, मुझे ये पता करना है कि पैसा किस में ज्यादा है, पैसा कहाँ मिलेगा सो ये बताएं पैसा कहाँ मिलेगा. सो यहाँ पे फिर मैं उसको जो है वो कुछ ऐसे करियर्स बताता हूँ जहाँ पैसा बहुत है. तो अगेन वो कहते नहीं सर ये फील्ड्स मेरे शायद वैल्यूज को अलाउ ना करें, एंड यू बेटर नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. I can सो imagine, yeah. सो वो करियर जो है फिर वो जब मैं बताने लगता हूँ तो दे फील ashamed of themselves कि ये मैंने क्या सवाल ही गलत पूछ लिया, ये क्या सर क्यों इस लाइंस पे जा रहे हैं. That's true. बट दैट्स हाउ यू मेक द यूथ ऑफ टुडे लर्न कि देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं है. ठीक है जी. So yes, it's important to earn money. It's important for life कि आप जो है वो पैसा earn करें. But ultimately, your goal should not be to earn money only or to select your career on the basis of its monetary benefits. ठीक है जी. हर करियर के स्टार्टिंग फेज में आपके ट्रबल्स होते हैं, आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है. But it's important that you select your career based on your interest. ठीक है जी. अब जो है वो क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं. पहले हम पूछते थे बड़े होकर क्या बनना है. ठीक है जी. जब अब सवाल चेंज हो गए हैं. अब सवाल ये होता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी यू वांट टू सॉल्व. नाउ दिस हैज कंप्लीटली absolutely this changed. I mean, this has changed the perspective of your thinking, right? पहले आप सोच रहे थे कि अपने आप को एक बॉक्स में फिक्स होता हुआ देखते थे. Now you are opening up the horizon and you're thinking कि अच्छा इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ और उन प्रॉब्लम्स के अंदर जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं ऑलरेडी मार्केट में, क्या मैं उनके साथ कोलैबोरेट होके या उनके साथ एसोसिएट होके काम करूंगा या शुड आई स्टार्ट ऑफ माय समथिंग ऑफ माय ओन, राइट? So ये क्वेश्चन अपने आप से करें कि is there a problem in a society? Yes, there are a lot of problems. Yes. So which problem you are more inclined towards to solve? And वो आपका वैल्यू बताएगा, वो आपका पैशन बताएगा, वो आपका इंटरेस्ट बताएगा. ठीक है. अच्छा, अब सवाल कभी कभार ये भी आता है कि सर काम मैं इस एरिया में करना चाहता हूँ लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें पैसा कम है. ठीक है. So that means that your value, I mean, you're valuing money over others. So ऐसा बहुत आइडियल केस होता है जहाँ पे आपके सारे वैल्यूज मैच हो रहे हो. ऐसा आई थिंक आपके साथ भी नहीं हुआ होगा और ऐसा मेरे साथ भी नहीं हुआ कि हमें सब चीजें बेक वक्त एक साथ. So you have to prioritize which values are important to you. ठीक है. आप इन सब शुरू में आते ही इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जहाँ पे पैसा ही पैसा है, लेकिन फिर आपको बाकी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना होगा. ठीक है. सो प्रायोरिटाइज योर वैल्यूज एज वेल. सो सेकंड थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग. अगर आपने इस बेसिस पे अपने करियर डिसीजंस लेना शुरू कर दिए या स्टार्ट में ही अगर आपने ये करियर अपना इसी बेसिस पे चूज किया कि कहाँ पैसा ज्यादा है, इट कुड बी अ ह्यूज डिजास्टर. ओके. थर्ड मिस्टेक that I would say कि यूथ या करियर डेवलपमेंट फेज में इंसान लेता है, वो ये है कि you select your career on the basis of someone else life story. Okay. आप समझते हैं कि अगर रहीम एक साइंटिस्ट है और वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट है और उसने एक पर्टिकुलर फील्ड को परस्यू किया था, तो आई वुड बी फॉलोइंग द सेम फुटस्टेप्स और मैं भी उसी तरह जो है वो सक्सेसफुल बन जाऊंगा. सो यू आर बेसिकली अंडरमाइनिंग योरसेल्फ. बट अगर मैं इसको मैं सही समझ रहा हूँ, अगर पर इंस्पिरेशन लेना या किसी को मेंटर बनाना, किसी से इंस्पायर होना, आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज है, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट. यस, देखिए इंस्पिरेशन लेना एक चीज है और उसको एज इट इज फॉलो करना, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना है. बिल्कुल कॉपी करना. यू आर लूजिंग योरसेल्फ इन दैट प्रोसेस. if you are copying someone, basically you are losing yourself. ठीक है.
So there are a lot of trainers in the market, there are a lot of educationists in the market, but my persona and my areas are different. ठीक है, मेरा जो way है वो different होना चाहिए, and how it can be different when I be myself. So अभी मैं जो यूथ को देखता हूँ उसमें एक जो बड़ा important factor नजर आता है वो ये है कि they start copying the people who are already doing the fantastic work. It's good to take inspiration, but always remember that you are you. ठीक है जी, आप अपने you को अपने से अलग ना होने दें. So that's my third advice. और इसमें यही mistake होती है when you start just copying the other people. So अगर आप सिर्फ copy करते रहेंगे, so maybe you will feel at some point in time कि आप stuck हो जाएंगे. Yes, it's a very interesting perspective. मतलब मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने का था in three mistakes में. एक जो है वो एक जो मैं ऐड करूंगा, आपने 3 पूछे लेकिन ये चौथा एक समझने के इट्स काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट. ठीक है, एक कैटलिस्ट है कि ये अगर नहीं हुआ तो फिर ये सारे 3 भी वर्क नहीं करेंगे अगर आप इन पे काम भी कर लेते हैं. वो है आपकी प्लानिंग. ठीक है जी. लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स बट प्लानिंग नहीं होती. ठीक है, ख्वाब होते हैं. सो व्हेन यू से ख्वाब, so you can imagine a lot of things, you can dream about a lot of things, but whenever you are planning you are setting some milestones, some small milestones. Okay. और उसके लिए आप टाइम फ्रेम भी सेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर काम जो है, गोल जो है वो मैं कब तक अचीव करूंगा. ठीक है, तो अगर आपने सोचा है कि आई वांट टू बी और आई वांट to be one of the best public speakers of all time, if this is your ultimate destination or goal, तो आप जो है वो पहले देखते हैं कि इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स कौन से लेने हैं. Probably जो बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स हैं वो उन्होंने काफी किताबें पढ़ी हुई हैं. दे आर गुड इन प्रेजेंटेशन, दे आर गुड इन कॉन्फिडेंस, एंड दे आर गुड इन नरेटिंग थिंग्स. तो आपका स्टार्ट ये हो कि कम से कम अगर आज आप अभी आप एक भी किताब नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट प्लान फॉर अ 30-day प्लान कि 30 दिन में एक किताब पढ़नी है. ठीक है जी. तो प्लानिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट प्लानिंग योरसेल्फ, ठीक है, और ये प्लानिंग सिर्फ एकेडमिक नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते. तो अगर आप प्लान नहीं करेंगे अहेड ऑफ टाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपका इंटरेस्ट भी उस फील्ड में है, आपकी शायद पैशन भी उस तरफ जा रहा है, आपके जो वैल्यूज भी हैं वो भी आपको अलाउ कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली चूंकि आपके पास प्लान नहीं है तो बेसिकली यू आर प्लानिंग टू फेल. नाइस, थैंक यू. मतलब मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला इससे. मैं एक सवाल लास्ट मेरा एक सवाल होगा कि हाउ डू डिफाइन एक्सेलेंस या सक्सेस इन अ करियर. लाइक अगर एक करियर है, हाउ यू कैन डिफाइन एक्सेलेंस और सक्सेस. अच्छा, आई थिंक रहीम यहाँ पे आपने ना 2 कॉन्ट्राडिक्ट टर्म्स को साथ मिला दिया, सक्सेस एंड एक्सेलेंस. प्लीज हेल्प मी. सक्सेस का जो है वो ताल्लुक आपके किसी गोल्स जो आपने सेट किए हैं या किसी एक आपकी समझने के फैंटेसी है या आपका एक बेसिकली अल्टीमेट एक प्लेजर स्टेट है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, और वो अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप कहते हैं आई एम सक्सेसफुल. ठीक, या दिस पर्सन इज सक्सेसफुल बिकॉज इसको जो मिलना था या जिसके लिए इसने प्लान किया था वो अचीव हो गया. एक्सेलेंस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. Okay. आप का बार ऑफ एक्सीलेंस ऑलवेज इंक्रीजेस. ठीक है, एक्सीलेंस एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. आप आज कहते हैं कि आई एम द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, में भी कल को आपको कोई बीट करके चला जाएगा बिकॉज उसने कुछ नई स्किल सीख ली, उसने कुछ नया कर लिया आपसे ज्यादा. इस दौरान मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है वो काफी बच्चे सर्टिफिकेट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस ऑफर हो रही हैं, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, कोर्सेरा ऑफर कर रहा है, खान एकेडमी ऑफर कर रहा है, देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, यूडेमी ऑफर कर रहा है, सब लगे हुए हैं सर्टिफिकेशंस कलेक्शन में. ठीक है, एंड दे आर अज्यूमिंग के जैसे ही ये कोविड खत्म होगा और ये सर्टिफिकेशंस जो हैं वो हम अपने एम्प्लॉयर्स को दिखाएंगे, या हम अगर हम हायरिंग के लिए जा रहे हैं, हम अपनी जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, तो हमें पूछा जाएगा कि विच स्किल्स हैव यू लर्न, तो हम फौरन ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे और हमें हायर कर दिया जाएगा. दैट्स अ मिसकंसेप्शन. ठीक है, सो ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप को स्किल्स के हवाले से डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपकी अपनी जो स्किल्स हैं वो इनहेंस होती है. सो जो आपका पॉइंट था कि क्या सक्सेस और एक्सेलेंस जो है
वो क्या है मेरे नज़दीक? तो मेरे नज़दीक सक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, जो कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन के लिए भी यही है, और आप अगर छोटी सी दुकान चलाने वाले को भी कहें कि ये सक्सेसफुल है, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है विच आई ऑलवेज कोट. सक्सेस, दैट मीन्स S is equals to P multiply by E. ठीक है जी. So S equals to P multiply by E, और ये P multiply by E क्या है? P is planning. ठीक है जी. You have to plan to achieve something, right? And the next is जो E है आपका multiply by E. E is basically execution. It's a combination of planning and execution. And it's not. I'm saying it's multiplier effect. So अगर आपने 100 चीजें प्लान की हैं, but you are not executing a single plan, आपका सक्सेस जो है वो 0 होगा. तो अगर आपने 100 चीजें प्लान की हैं और अगर एक भी एग्जीक्यूट करते हो तो आंसर 100 तो आएगा ना. So जो इसके फॉर्मूले के अंदर जो मेन पार्ट है, दैट्स बेसिकली E. So you plan a lot of things. ठीक है, जैसे वो कोड भी है कि प्लान एज यू विल लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बट स्टार्ट वर्किंग दैट यू विल बी डाइंग टुमारो. ठीक है. सो आपने यही काम करना है कि प्लानिंग करनी है और एग्जीक्यूशन पे काम करना है. दैट्स सक्सेस. और एक्सेलेंस की जहां तक बात है कि तो आई वुड फील कि एक्सेलेंस जो है वो इज एन एवर एंडिंग प्रोसेस. it's a continuous effort. It's a continuous process. So Danish, my last question is कि अगर ऑडियंस आपको रीच आउट करना चाहती है कि आप फ्रीलांस ट्रेनिंग भी करते हैं, आप कंसल्टेंट भी हैं, तो अगर हमारी ऑडियंस आपको रीच आउट करना चाहती है, व्हाट्स द बेस्ट मीडियम टू रीच यू आउट? ओके, सो सिंस प्रोफेशनली अगर कोई मुझे जो है वो इफ दे वांट टू गेट इन टच विद मी, LinkedIn is the best medium. If they can connect with me on LinkedIn. ठीक है जी, मेरा सिंपल है दानिश इम्तियाज गंगानी. You can search me out. I have a Facebook official page as well. वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं. But professionally speaking, I'm more active on LinkedIn. इसके अलावा जो है I have a YouTube channel. If you want to follow my work there, so आप मुझे YouTube चैनल पे फॉलो कर सकते हैं. मैं इन तीन के YouTube, Facebook और LinkedIn तीनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा. Great. So audience can reach you out. Thank you so much. Thank you. वेलकम. थैंक यू दानिश, आपने अब इतना टाइम निकाला हमारे लिए और बहुत ज़्यादा आपने हमें सिखाया है कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, एंड द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड सक्सेस. थैंक यू दानिश. It has been pleasure. Thank you. Thank you. तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं. खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें.